Let's understand the paper for this new syllabus ECIPL Module 2. As you all are going through with the new pattern of the examination, a small surprise which was not expected in the attempt is that we don't see 20 marks objective MCQ. Rather than Institute has provided for the case space 20 marks as a first question, as a compulsory question. फाइन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, क्योंकि पेपर कंपैरेटिवली बहुत ही सीधे आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए. सो देख लेते हैं फटाफट बच्चों कि कैसा है पेपर. एकदम पेपर अगर आप दे चुके हो तो पेपर सीधा ही है. एक एक पैराग्राफ में केस दिया था पार्ट 1 में. यहाँ देख लीजिए व्हाट इज बीन गिवन इन दिस. हियर वी हैव रिटन कि that part 1, yes, this is the part 1 portion of your paper, right? So here we have part 1 of your paper. Now look at this. There is a call. Tia purchased a laptop for her sister from HP, and obviously then after at installation time she finds some manufacturing service center as a defect, and the defect was detected, but the company refused to resolve the issue, saying that the context that she is not a consumer as on the above case. So can we say that? Question 1, can CR be treated as a consumer? If you all remember the definition of consumer, we have studied definition of consumer, जहां पे हमने साफ साफ बात किया था कि भाई who can be a consumer? One who consumes with the consideration, even the authorized person, the relatives, you can say that the people as a authorized person, you can say the relatives, you can say the family members, anyone who even consented by the main consumer is also a consumer. In this case, she will get the benefit of being consumer. So write the definition and then your conclusion. Then comes the next one. If a laptop was purchased through Amazon, then explain the duty. So if you remember guys, हमने साफ साफ पढ़ा था e-commerce वाले duties. E-commerce brands की duties उन्हें disclose करना पड़ेगा, review बतानी पड़ेगी, उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, replacement बतानी पड़ेगी, right? वो सारी points जो अभी new guidelines है, जो बहुत ही अच्छी चीज है, practical भी है, आप आए दिन देखते हो, और साफ साफ लिखा भी था. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. Then comes had the manufacturer been appointed to the seller of this issue, has the had the mediator, sorry, अगर mediation appoint किया गया हो. अब याद करो बच्चों, हमने CPA के न्यू प्रोविजन में ADR के रूप में mediation का ऑप्शन देके रखा है. तो अगर आपने ऑप्ट किया एज अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड और वो allowed है, it is allowed under the CP Act. So mediation is allowed, and this can be opted before the judgment is being passed by the respective consumer councils where you file the complaint, or even you can ask for the suo motu, ask for the settlement through the mediation cell. So it is the explain about the mediation procedure, when we can go, and the time limit and the procedure. Straightforward again question. Now next is the next question goes, everybody. Here the next question is, yes, here the next question is question number 2. That is written, Tito is a seller of a dental floss and market share where in the market where he holds monopoly. Now only handful sellers of this product line in dental care, the competitor across him of possessing the dominant position. ये word देख लो आप लोग, क्या पूछा? तो पूछा इन लोगों ने dominant position के बारे में. ठीक है, abuse of dominant position. Can you see that? And
आपने पढ़ा हुआ है साफ साफ कंपटीशन एक्ट में, अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर डोमिनेंट पोजीशन. क्वेश्चन इज about the same. So you have to explain the dominant position and what is the abuse of the same. So remember, when dominant position is one of the anti-competitive practices, dominant person itself is not bad. If you remember, it's not bad unless you abuse it. You abuse it. So becoming a dominant player is not bad, absolutely not bad. And when the dominant position abuse its position, it's bad. So what is abuse of dominant position? What is the dominant position? The definition, the meaning, the concept, we can easily explain. Even the threshold limits has been provided under the Competition Act to form a combination and to use the dominant position. राइट. तो यहाँ पे सीधा सीधा डोमिनेंट पोजीशन बताना है और उसके फैक्टर्स की कौन कौन से फैक्टर्स, मार्केट एंट्री रोकना, एग्जिट रोकना, नए प्लेयर्स को नहीं आने देना, अनफेयर कंडीशनिंग करनी. राइट. हमने इसमें वो अगर याद होगा लेटेस्ट केस हमने डिस्कस किया था बच्चों, एशियन पेंट वाला, वो यहाँ पे एशियन पेंट जेएसडब्ल्यू पेंट वाली केस जो हमने डिस्कस करी थी वो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो. ओके. तो एकदम मजा आ जाएगा. नेक्स्ट आ जाओ आप. फैजल इज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर. देखो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है. एंड ही लेफ्ट इंडिया टू अवॉइड द लीगल प्रोसीडिंग. डेफिनेशन का हिस्सा है. तो डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग द पावर्स ऑफ द सिविल कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू डिसअलाउ द सिविल क्लेम्स एंड अटैच द प्रॉपर्टी. तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं. अपने पढ़े थे कि भाई अगर कोई बंदा भाग जाए बाहर, विजय माल्या जैसे केसेस में हमने डिस्कस किया था कि इस एक्ट का ही नाम होना चाहिए विजय माल्या. अब ये लोग बाहर चले जाते हैं, इंडिया छोड़ के चले जाते हैं, फ्यूजिटिव हो जाते हैं, 100 करोड़ से ऊपर का इनका फ्रॉड का क्लेम होता है. अब ऐसे केस में हमारे जितने भी सिविल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स इंडिया में या बाहर भी जहाँ इनकी प्रोसीडिंग चल रहे, वहां पे हम ये कोशिश करेंगे कि इनको अलाउ ना किया जाए एज अ क्लेमेंट. आप आके डिफेंड करें, आपके काउंसिल ना आके डिफेंड कर पाए, और इनकी प्रॉपर्टी अटैच करने की प्रोसीजर की जाएगी. इसमें लिए प्रोसीजर था कि पहले प्रोविजनल अटैच करेंगे 180 डेज तक, उसका क्लेम करेंगे, कोई नहीं अगर आया आगे प्रोसीजिंग में तो उसको फिर कॉन्फिस्केट करके सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में अपन क्रेडिट कर देंगे. राइट. ये प्रोसीजर एक्सप्लेन करना था बच्चों. बहुत ही सीधा क्वेश्चन है तो. राइट. आगे चलते हैं. आ जाइए. देन कम्स, जी आइए देख लेते हैं. Then comes the next question, ladies and gentlemen. Okay, here we go. The next question for you. And the next question here is, okay, in a law, support your answer with reference to the case law. The case was, okay, त्रिलोक purchased a tractor. अब ये देखते ही आप लोग को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का वो भूपेंद्र बहादुर जंग गुना वाला केस याद आया होगा. भूपेंद्र बहादुर जंग गुना याद है आप लोग को, वर्सेस पीएसजी. उसके केस में यही था, ट्रैक्टर लेके आता है और आइडल टाइम में वो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है. तो क्या वो कंज्यूमर नहीं रहेगा कंज्यूमर डिस्प्यूटेड रेजिड्यूशल फोरम के अंदर? क्वेश्चन क्या है? देखो ओल्ड वाला रेफरेंस भी दिया हुआ है यहाँ पे. देखिए क्वेश्चन ये है कि ओके, whether Tilok will succeed in this case? Yes, of course, because this is not the case of क्या बोलेंगे, कमर्शियल पर्पस. इट्स नॉट कमर्शियल पर्पस, इट इज अ लाइवलीहुड वाला मैटर. तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कह लो आप या लाइवलीहुड कह लो, तो ही कैन सक्सीड. ओके, वो सक्सीड होगा, ही विल. यस. और केस लॉ आपको बता ही दिया मैंने. राइट. नेक्स्ट गोज अनदर क्वेश्चन. यहाँ पे नेक्स्ट देख लीजिए, सीधा सीधा क्वेश्चन. इसलिए वो जो दर्द है आप लोग का एमसीक्यू नहीं आने का, मुझे नहीं लगता कि आप उसको सस्टेन करोगे. आगे चलते. नाउ अमित, अ डायरेक्टर ऑफ एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, नाउ ऑन अ यूएस ट्रिप, suddenly he developed the chest pain there, wherein he provided with the medical treatment at the hospital. The funds were provided by the John, US national, who happened to be his friend. Now, did Amit violate the provision of FICRA?
अब बच्चों ये तो आपके विक्रम, हमारे दूसरे फैकल्टी जो आपके विक्रम सर वो पढ़ाते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, तो क्या ये फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के कैटेगरी में आती है और क्या ये अलाउड है? तो कुछ चीजें अलाउड होती है, जैसे यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट है, राइट। इसके थोड़े बहुत फॉर्मेलिटी एक्सप्लेन कर देना था, सीधा सीधा क्वेश्चन है। आज वापिस आगे चलते हैं। A individual by a transaction purchased a house in the name of his wife. Consideration of the transaction was paid by A, one of his known source, right? Okay. Government seized that property, claiming that it is a benami property. आप बताओ, बताओ यार, सीधा सीधी बात है। अब देखो इसमें साफ साफ खुद ही लिखा हुआ है। पहली बात तो उसने आपको याद होगा बेनामी ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं, बेनामी ट्रांजैक्शन का जब अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चों, तो आपको याद होगा साफ साफ वहां लिखा हुआ था कि बेनामी ट्रांजैक्शन जो होती है, अगर वो अपनी वाइफ के नाम पे आप प्रॉपर्टी, वो भी नॉन सोर्सेस से, तो ये बेनामी प्रॉपर्टी नहीं होगी, एक्सेप्शन में फॉल करता है ये। तो यहाँ पे डेफिनेशन ही बताना था आपको बेनामी प्रॉपर्टी का, और कुछ नहीं। और लास्ट में कंक्लूड कर देना था कि ये सीजर गलत है गवर्नमेंट का, और ये नहीं माना जाएगा एज वैलिड सीजर। ओके, चलिए, गवर्नमेंट का एक्शन रॉन्ग माना जाएगा यहाँ पे। एक्सप्लेन दैट इमीडिएटली, सीधा सीधा डेफिनेशन लिखो और कंक्लूजन। तो अब इससे आसान क्या हो सकता है भाई साहब? ठीक है, ओके। चलिए वापिस से आते हैं, एक और केस है यहाँ पे, वेदर द एक्शन है गवर्नमेंट। चलिए, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिलेटिंग टू प्रोसीजर फॉर नोटिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशन एज पॉलिटिकल नेचर। ये भी सीधा क्वेश्चन है कि कौन कौन से ग्राउंड पे आप किस तरीके से आप एक ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल नेचर का मानेंगे। तो इसके कंडीशन अगेन ये आपके दूसरे वाले सर पढ़ाते हैं, तो मैं इसमें डिटेल नहीं करूंगा, बट ये भी सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो आई डोंट थिंक सो कंफ्यूजन में। जानबूझ के उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा जहाँ पे थोड़े केस स्टडी बेस्ड है। तो एनालाइज द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सस्पेंड द स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी, ये भी सीधा क्वेश्चन है। आ जाओ उसके बाद, विच ऑर्डर्स may be issued by the CCI to inquiry into the agreements of abuse of dominant position। अब देखो कितना अच्छा है आपका इंस्टीट्यूट, ऊपर डोमिनेंट पोजीशन डेफिनेशन पूछ लिया, फैक्टर्स पूछ लिया, अब नीचे उसका बता दीजिए क्या क्या ऑर्डर्स भी कमीशन पास करती है। तो आप सोचो, अग्रीमेंट कैंसिल करने के लिए बोल देगी, मॉडिफाई करने के लिए बोल देगी, चेंज करवाने के लिए बोल देगी, उसमें किसी तरीके का फ्यूचर डायरेक्शन दे देगी, किस तरीके से आपको इसको डायरेक्ट करना है, रेगुलेट करना है। कोई शेयर एक्वायर किया तो एक्विजिशन रुकवा देगी, बदलवा देगी, ट्रांसफर करवा देगी। इट कैन बी ऑल काइंड ऑफ ऑर्डर्स हैव बीन रिटन क्लियरली। ये भी सीधा सीधा अंडरलाइन करा हुआ क्वेश्चन है आपको, तो ये भी आपको लिख लेना था, आपकी लाइफ सेट है। मैं सारे क्वेश्चन ऑल्टरनेटिव वाले भी एक बार दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको, अब जिन लोगों ने जो भी अटेम्प्ट किया हो उनको इस बात की थोड़ी सुकून हो जानी है। आगे चलते, आ जाओ नेक्स्ट। अगेन देखो, हु इज स्टेटस होल्डर अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, भाई डेफिनेशन पूछ रहा है। व्हाट फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन केस ऑफ private visit for a immigration under the LRS scheme। LR scheme explain कर दो, facilities बता दो। Adopted ways in which collusive bidding or bid rigging may be occur। अब यहाँ पे भी जो बॉक्स वाला पॉइंट था, अगर याद होगा आपको, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में वो सारे प्रोसेस बताओ बिड रिगिंग वाले, वो सारे बिड रिगिंग के प्रोसेस बताओ, कैसे कॉमन एक साथ बिड डालना, बिड में नहीं पार्टिसिपेट करना, जानबूझ के नॉन कम्पीट बिड करना, आपस में अग्रीमेंट करके बिडिंग करना, वो सारे वेज जो कहीं ना कहीं कल्यूसिव होते हैं या बिड रिगिंग को, ये एक एंटी कॉम्पिटेटिव एक्टिविटी है, याद होगा आप लोग को। इसके भी पॉइंट्स हमने सीधे सीधे डिस्कस किए थे। इलाबोरेट द लॉ एंड प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्फिस्केशन और बेनामी प्रॉपर्टी। लो भाई, वहां पे भी देखो, जो ऊपर बेनामी प्रॉपर्टी की कॉन्फिस्केशन होती है ना, वो फ्यूजिटिव वाला ही जैसा ही है, 180 डेज वाला। एक प्रोविजनल नोटिस करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, एक पहले उसके एक टीम बनेगी डायरेक्ट। यहाँ पे बच्चों अथॉरिटी तो ईडी होता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के अंदर ही आता है, तो वो आप जब पढ़ोगे ना, दोनों में सेम ही आएगा, तो काम में आ जाएगा आप लोग को डायरेक्टली।
नाउ वी गोइंग टू द पार्ट 2 ऑफ दिस करिकुलम। यहाँ पे एक पार्ट 2 वाले में आते हैं बच्चों। यहाँ पे भी देखो एक ये भी मतलब मैं एग्जैक्टली मैट में आप जाके देखो, वहां भी एक सेम फार्मास्यूटिकल वाला केस दिया हुआ है इंस्टीट्यूट के मॉडल में। अगर आप जाओगे ना, यूल गो टू द मॉडल ऑफ द इंस्टीट्यूट ECIPL वाला पार्ट 2 में ये सेम केस हल्का सा मॉडिफाई करके दिया हुआ है। इसमें पूछा गया पेटेंट रिलेटेड, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है देख लो। इसमें पूछा इन लोगों ने कि यहाँ देखिए लिखा है कि भाई is the process developed by the company is a new and innovation। तो उसमें 4 कंडीशन है कि किस किस को इनोवेशन कहते हैं। एक इनोवेटिव यूज इंडस्ट्रियल पर्पस में आना चाहिए, न्यू प्रोडक्ट डेवलप होना चाहिए, एग्जिस्टिंग नहीं होना चाहिए, पेटेंटेड नहीं होना चाहिए। अभी ये सारी चीजें कंडीशन लिखे, फैक्टर्स लिखे, उठा के डाल देने थे। आइडेंटिफाई फ्रॉम द अबव केस स्टडी है whether the process adopted by the X pharmaceutical has been patented or a combination of drug have been पेटेंटेड। अब ये यहाँ पे केस पढ़ोगे ना आपको देखो, एक बार मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। A pharmaceutical limited, a renowned pharmaceutical company engaged in producing new pharmaceutical drug, has developed a new drug applying the process of making, combining drugs of a chemical material and a microorganism। ये देखो प्रोसेस देख रहे हैं आप लोग। X that pharmaceutical company has patented this new innovative process को इन्होंने पेटेंट कर लिया and appropriate authority and got it patented registered, whereas why Insta Lab Private Limited engaged in the producing the pharma drugs, developed a drug of a combination of a drug that is penicillin and lactoboline, following the same process as was। ये सेम प्रोसेस को ऑनलाइन कर लो, यहीं पे वायलेशन वाली बात आएगी। ये सेम प्रोसेस वाली बात को now used in the production of drugs already, ये देखो एक और वर्ड, already in the market and the combination of drug for the quite a few months। अब इस केस को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या लिखा है that X pharmaceutical limited claim that they have developed the process of manufacturing the after the years of the research and development, and also claim that they have evolved a new process। The new process, very important word ladies and gentlemen, the new process। ये कीवर्ड देखिए आप लोग, new process, these are the innovative steps। So drugs with the new process hetu unknown to the pharmaceutical world, and the pharmaceutical limited filed a suit against the Y Lab Limited seeking the expert as interim injunction restraining that lab company from using that same process for production same। अब इसके आधार पे हम बोलते तो इन पहला तुम डिस्कस कर लिया। तो आइडेंटिफाई फ्रॉम द अबव केस स्टडी whether the process is adopted by company has been patented or the combination of the drugs have been patented। yes, they have followed the entire process। so and यहाँ पे आपको स्टेप भी बताने होंगे जो हमने एक याद करो एक फ्लो चार्ट के रूप में करा के रखा था, मार्किंग कराई थी और डिस्कस किया था। इंस्टीट्यूट के मैट में भी दिया हुआ, तो आपको फ्लो चार्ट भी यहाँ पे लिख सकते थे। सिंपल स्टेप्स, X pharmaceutical company limited restrain while lab from the using the process of combination of drug। yes, they can bring that suit of infringement of that patent, right? Because it's a right granted to them, they have a prior right, so they can file a suit against the authority and get the restraining order। obviously that process also explained। उसके बाद what relief award under can be provided by that provide for that company in this instate case, like the compensation also granted as well restraining orders can be granted। ये भी लिखा हुआ है रिलीफ में। तो ये सिंपल देखो, ये सेम केस आपको मिल जाएगा स्टडी मैट पे। आप जाओगे ना उस चैप्टर में, एग्जैक्टली मैं पेज नंबर नहीं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ, बट देर इज द सेम केस। वहां पे सारे प्रोसेस ऑफ पेटेंटिंग, मेथड ऑफ पेटेंटिंग, आगे इंजंक्शन वाली बात भी है, कॉम्पनसेशन वाली बात भी है। तो तीनों चारों सीधे लिख देने हैं। आइए, do the following constitute infringement of copyright under this। तो प्रोफेसर अजय recited the in public extract from the poem by रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर उनका नाम लेके आप रिसाइट करते हो, ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में होता है, so that is allowed, there is no problem in that। आगे
यहाँ पे याद होगा बच्चों, इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है वायलेशन। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट का मीनिंग भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एबीसी पब्लिशर्स published a compilation of speeches of Atal Bihari Vajpayee ji, former prime minister. Again देखो जो पब्लिक डोमेन है, ये लोग पब्लिक फिगर है, दैट इज आल्सो अलाउड। आप सोशल मीडिया में देखते ही हो, उसके लिए कोई अलग से कंसेंट हमें नहीं चाहिए। A newspaper published a copy of the masterpiece painting of Ganesh while carrying out a story on his death. Again, that is allowed. बट ध्यान रखने का कि ये अगर इस पे मास्टरपीस वगैरह है और वो कमर्शियल पर्पस के लिए है, तो ऑब्वियसली उसकी आपको पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी, अनलेस द इंटेंशन ऑफ द न्यूज़पेपर इज टू not to make a commercial profit out of it. A book is not available in India. A librarian makes 10 copies of the book for the use of public library. Allowed hai, because that's not again for the purpose of the commercial sell, academic purpose के लिए है, and number is again limited. Numbers आपको याद होगा. The magazine reproduced as article on a political topic by Kuldeep Nair. A magazine reproduce an article on political topic by this. अब देखिए reproduce कर रहे हैं आप, article already produce है, market में है, publicly है, that's allowed, no violation at all. Manish assigned a copyright of his book uh, to to his niche Sujata to in 2020 and 22 due to some misunderstanding between them. Manish wants to revoke that assignment. Sujata contends that she has made uh, any fault, and not many fault, and she has helped a lot in there on the ground for revocation of assignment. So first of all, yes, assignment can be revoked. However, the assignee will also have certain rights, because this assignment of copyright is a part of transferring the same, so that is also being protected. तो दोनों ही एंगल से आपको ये चीज पढ़ना है। एक तो कि आपने जो कॉपीराइट असाइन किया है वो अलाउड है, और रिवोकेशन भी पॉसिबल है। और यहाँ पे देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात है, बट ये दोनों पार्टी को सामने असाइनी को भी ओबीएच मिलेगा, और असाइनी ऑल्सो हैज सर्टेन राइट्स अंडर द असाइनमेंट ऑफ ट्रेडमार्क. You have recently appointed as the company secretary of Ever Innovative Limited. Your company receives a notice from the controller of the patent that application filed by your company for the grant of a patent of a new machine was deemed to have been abandoned. How would you propose to deal with the matter? तो यहाँ पे भैया अगर आपका ऑलरेडी एप्लीकेशन था और अबैंडन हो गया है, तो आप फिर उसके रिलेटेड अपील करेंगे और री प्रोसीजर के लिए भी अप्लाई करेंगे। अगर आपका एप्लीकेशन रिवोक्ड हो जाए या अबैंडन हो जाए, तो किस तरीके से आप उसको प्रोसीज करोगे री एप्लीकेशन के लिए या उसके रिलेटेड रीजंस, क्योंकि ऐसे ही नहीं आप अबैंडन कर सकते। देयर आर ड्यू प्रोसीजर फॉर द कंट्रोलर, देयर टाइम लिमिट्स अलाउड, there are public notices allowed, there are objection period allowed, opportunity of parties to explain that defect or incompleteness in that patent application is allowed, a provisional time period is also allowed. तो वो सारे points आप explain करोगे। What is mean by industrial property? सीधा definition आपको बता देना है फर्स्ट चैप्टर में से। ये सारे एग्जाम्पल्स के साथ कौन कौन से इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज में आते हैं। ओके, उसके बाद ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, लास्ट वाला। An application for registration patent has been filed for provision of specification indicating subject matters in which the invention relates. State the contents of specification. तो लो भाई, provisional specification, provisional patent के लिए, patent application के लिए specification बतानी पड़ेगी कि उसके अंदर क्या क्या points आप explain करोगे, uses, tenure, purpose, ये सारे सीधे सीधे points explain करके आ जाना। Who is the proprietor of design? स्टेट द प्रोहिबिशन फॉर रजिस्ट्रेशन और डिजाइन, ये आपको दूसरे सर ने पढ़ा है, तो इसमें नहीं जानता, बट सीधा क्वेश्चन है, बॉक्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है मैट के अंदर। जियोग्राफिकल इंडिकेशन रिलेटिंग टू द पेनल्टी, पेनल्टी बता दो, लास्ट वाले पॉइंट है, सीधा आपको एक्सप्लेन करना है।
ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट्स, आईपीएल वर्ल्ड कप देखते हैं आप लोग, रिगार्डिंग कॉपीराइट, ये भी आपको एक्सप्लेन कर देना, सीधा सीधा क्वेश्चन है ये आजकल देखो बहुत ही हॉट टॉपिक भी है मार्केट में। तो यहाँ भी आपको ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की किस तरीके से राइट्स वगैरह ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं ये देख लेना। तो लो भाई, जिसको इसमें सब तरीके के ऑप्शन अवेलेबल थे, मेरे हिसाब से पेपर एकदम मस्त है और आप लोगों ने अटेम्प्ट भी पूरा किया होगा। अगर एक बार स्टडी मैट खोल के देखोगे तो आपको सामने सामने हर चीज आ जाएगी। सो इट्स लाइक एक साइड में आईसीएसआई ने आपके साथ थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि गड़बड़ हुआ है, और दूसरे साइड में आपको इसका बेनिफिट भी दे दिया है in terms of easy and straightforward questions. So good luck everybody for the result. All the best.